बिट्टू कोई आम लड़का नहीं था। उसके बड़े बड़े सपने थे। हीरो बनना चाहता था, अमिताभ बच्चन जैसा, पर थोड़ा ज्यादा मजेदार। गांव की जिंदगी बिट्टू के बड़े सपनों के लिए बहुत छोटी। मुंबई बुला रही थी, सपनों का शहर कहते हैं। बिट्टू ने एक बैग पैक किया, ढेर सारी उम्मीदें भरी, एक्शन के लिए तैयार। मुंबई बड़ा, भरा हुआ और गर्म। बिट्टू ट्रेन से उतरा तो दंग रह गया। हर तरफ लोग भागते हुए, धक्का देते हुए। टैक्सी वाले चिल्ला रहे थे। बिट्टू को अपना सपना थोड़ा दूर सा लगने लगा। उसे अपने गांव की याद आने लगी और अपनी मां के हाथ के पकौड़े, खास तौर पर पकौड़े। बिट्टू को लगा था कि हीरो बनना आसान होगा। मुंबई जाओ, डायरेक्टर से मिलो, स्टार बन जाओ। अरे वो कितना गलत था। वो स्टूडियो गया, अपने एक्शन मूव्स दिखाए। लोग हंसने लगे, बोले, बेटा ये फिल्म सेट नहीं है, कैंटीन है। बिट्टू को निराशा हुई, पर उसने हार नहीं मानी। हीरो हार नहीं मानते हैं ना। मुंबई बहुत महंगा था। बिट्टू को नौकरी की जरूरत थी। उसने देखा कि डब्बा वाले टिफिन पहुंचा रहे हैं। परफेक्ट, उसने सोचा। वो टिफिन पहुंचाएगा और ब्रेक के टाइम पर एक्टर्स को ढूंढेगा। वो डब्बा वालों के साथ जुड़ गया, पर सैकड़ों एक जैसे टिफिन पहुंचाना देखने में जितना आसान लगता था उतना था नहीं। उसने टिफिन गड़बड़ कर दिए। एक बिजनेसमैन को बच्चे का टिफिन मिल गया। ग्राहक खुश नहीं हुआ। Section 5. Local train lunacy packed like sardines. Mumbai ki local train, the lifeline of the city, yet a daily struggle for millions. The hustle and bustle, the rush to catch the train, the anxiety of missing it, and the relief when you finally get on board. But then, the real challenge begins. Bittu ne kahaniyan to suni thi. He had heard tales of the crowded compartments, the pushing and shoving, the camaraderie among strangers, and the occasional acts of kindness that made the journey bearable. Ab wo khud ji raha tha. Har roz, wahi jaddojahad. Each day was a test of patience and endurance. The struggle to find a spot to stand, the constant jostling and the fight to keep his balance as the train swayed and jerked. Dhakka mukki, saans lene ki koshish. The air was thick with the smell of sweat and the sound of people talking, laughing, and sometimes arguing. Breathing was a challenge, and personal space was a luxury no one could afford. एक दिन भीड़ भरी ट्रेन में बिट्टू का बटुआ चोरी हो गया. It was a typical day, or so he thought. The train was more crowded than usual, and in the chaos, someone managed to steal his wallet. The realization hit him hard, and he felt a mix of anger, frustration, and helplessness. वो उदास था, गुस्से में था और भूखा भी. With no money and a long day ahead, he felt defeated. The city that he had come to with dreams and hopes seemed to be testing him at every step. पर फिर एक बुजुर्ग महिला ने उसे वड़ा पाव दिया. Amidst his despair, a kind elderly woman noticed his distress. She offered him a vada pav, a simple yet comforting gesture that brought tears to his eyes. बोली, फिक्र मत करो बेटा, मुंबई सबको परखती है. बिट्टू मुस्कुराया. She said, don't worry son, Mumbai tests everyone, but it also takes care of its own. Her words were a balm to his wounded spirit, and he couldn't help but smile. Shade Mumbai itni bhi buri nahi thi. In that moment, Bittu realized that despite its challenges, Mumbai had a heart. It was a city that could be harsh and unforgiving, but it also had a way of showing unexpected kindness. And so, with renewed hope, he continued his journey, ready to face whatever the city had in store for him. Section 6. The Audition Adventures, a Comedy of Errors. बिट्टू ऑडिशन देता रहा. मुंबई के थिएटर में हर दिन एक नई चुनौती होती थी. एक दिन कास्टिंग डायरेक्टर ने उससे रोने को कहा. बिट्टू ने सोचा, ये तो आसान है. डायरेक्टर ने बोला, सोचो तुम्हारी माँ नहीं रही. बिट्टू ने अपनी माँ की याद में डूबने की कोशिश की, लेकिन अचानक हंसने लगा. उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी, पर वो एक्टिंग करके रो नहीं सकता था. उसकी आंखों में आंसू नहीं आए, बस हंसी ही हंसी. दूसरी बार उन्होंने उससे डांस करने को कहा. बिट्टू ने सोचा, डांस तो मैं कर लूंगा. लेकिन जब उसने डांस करना शुरू किया तो उसके डांस मूव्स थे अजीबोगरीब, मजेदार कसरत जैसे ज्यादा. सब हंसने लगे. डायरेक्टर ने कहा, तुम तो नेचुरल कॉमेडियन हो बेटा. बिट्टू कंफ्यूज हो गया. उसने सोचा,
मैं तो हीरो बनने आया था। वो हीरो बनना चाहता था, कॉमेडियन नहीं, लेकिन उसकी हर कोशिश में कॉमेडी ही निकलती थी। बिट्टू ने हार नहीं मानी। उसने और मेहनत की और ऑडिशन दिए। हर बार कुछ नया सीखता, कभी रोने की कोशिश करता, कभी डांस की। कास्टिंग डायरेक्टर ने उसे समझाया, तुम्हारी कॉमेडी में एक अलग ही बात है, इसे अपनाओ। बिट्टू ने सोचा, शायद यही मेरा रास्ता है। उसने कॉमेडी को अपनाया और धीरे धीरे उसे पसंद आने लगा। लोग उसकी परफॉर्मेंस पर हंसते और तालियां बजाते। बिट्टू ने सीखा कि कभी कभी हमें वही बनना पड़ता है जो हम नहीं सोचते, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। बिट्टू ने अपने सपनों को नए तरीके से जीना सीखा और उसकी कॉमेडी ने उसे एक नई पहचान दी। और इस तरह बिट्टू की ऑडिशन एडवेंचर्स की कहानी एक कॉमेडी ऑन ऑफ एरर्स बन गई, जिसने उसे एक नया सितारा बना दिया। सेक्शन 7, अ ग्लिमर ऑफ होप, स्ट्रीट प्ले स्टारडम। एक दिन बिट्टू ने एक नुक्कड़ नाटक देखा। वो नाटक उसके लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोलने वाला था। एक्टर्स में बहुत जोश था। वो लोगों को हंसा भी रहे थे और सोचने पर भी मजबूर कर रहे थे। बिट्टू ने देखा कि कैसे ये कलाकार अपनी कला से लोगों के दिलों को छू रहे थे। बिट्टू उनके ग्रुप में शामिल हो गया। उसने महसूस किया कि ये उसका मौका है कुछ बड़ा करने का। उसने छोटे मोटे रोल से शुरुआत की, फिर बड़े रोल मिलने लगे। वो तो नेचुरल था। उसकी एक्टिंग में एक अलग ही चमक थी। लोगों को उसकी कॉमिक टाइमिंग, उसके एक्सप्रेशंस बहुत पसंद आते थे। हर परफॉर्मेंस के बाद लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उसे पैसे भी मिलने लगे। ये पैसे उसके लिए सिर्फ पैसे नहीं थे, बल्कि उसकी मेहनत का फल थे। बॉलीवुड तो नहीं था, पर शुरुआत तो थी। बिट्टू के सपनों को पंख लगने लगे थे। वो अब और भी मेहनत करने के लिए तैयार था। ग्रुप के साथ बिट्टू ने कई नई स्क्रिप्ट्स पर काम किया। हर नई स्क्रिप्ट के साथ उसकी एक्टिंग और भी निखरती गई। वो लोग मुंबई के अलग अलग इलाकों में परफॉर्म करने लगे। हर जगह बिट्टू की एक्टिंग की चर्चा होती थी। ग्रुप के साथ बिताए गए वो पल बिट्टू के लिए अनमोल थे। उसने दोस्ती, मेहनत और सफलता का असली मतलब समझा। बिट्टू अब और भी बड़े सपने देखने लगा था। उसे यकीन था कि एक दिन वो बॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाएगा। रात के अंधेरे में स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में बिट्टू का सपना और भी चमकने लगा। वो जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। उसने ठान लिया था कि वो कभी हार नहीं मानेगा। हर दिन, हर परफॉर्मेंस के साथ वो अपने सपने के और करीब पहुंच रहा था। और इस तरह बिट्टू की कहानी एक छोटे से नुक्कड़ नाटक से शुरू होकर एक बड़े सपने की ओर बढ़ने लगी। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक नई पहचान दी। बिट्टू का सफर अभी बाकी था, लेकिन उसने साबित कर दिया था कि अगर दिल में जुनून हो तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। सेक्शन 8, मुंबई टीचर्स, मुंबई इंस्पायर्स। मुंबई एक सख्त टीचर थी। उसने बिट्टू के सामने हर रोज चुनौतियां रखी, पर साथ ही उसे हार न मानना, हंसते रहना और मेहनत का महत्व भी सिखाया। उसने सीखा कि हीरो बनने का मतलब सिर्फ फिल्मों में विलेन से लड़ना नहीं होता, बल्कि जिंदगी की चुनौतियों का सामना मुस्कुराते हुए करना होता है। सेक्शन 9, द जर्नी कंटिन्यूज, अ हीरो इन द मेकिंग। बिट्टू का सफर अभी शुरू ही हुआ था। वो अब भी अपने बॉलीवुड सपने का पीछा कर रहा था, पर अब उसके पास अनुभव था, आत्मविश्वास था और एक अलग अंदाज था। वो जानता था कि भले ही वो बड़ा फिल्म स्टार न बने, पर वो लोगों की जिंदगी में हंसी और खुशी ला सकता था। और यही बात उसे एक हीरो बनाती थी, मुंबई का हीरो।